Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबों से हमारे प्यारे खुदावंद और मसीह यीशु के प्यारे नाम में सलाम पेश करता हूं। And greetings to you from Yehovah Shammah Urdu Church in Hyderabad. और हैदराबाद में होशमा उर्दू इक्लीसिया जो है हमारी मिनजानीब आपके सामने सलाम पेश करते हैं। This evening, before we worship our God, let us be strengthened by the word of God. Let us turn our Bibles to the Genesis chapter 35. आज शाम को हमारी इबादत से पहले कलाम हम देखेंगे और इसके वास्ते आज हम जेनेसिस की किताब, पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 35 देखेंगे। Genesis chapter 35 verses 1 to 3. पैदाइश की किताब 35वां बाब आयतें 1 से 3। And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel and dwell there, and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. Then Jacob said unto his household and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments, and let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. और खुदा ने याकूब से कहा, उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाव के पास से भागत जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा, बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए उस जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। Let us kneel down and look unto the Lord for His हम grace. घुटने टेकेंगे और दुआ करेंगे। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. है हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और हम दस्तना बजा लाते हैं। Father, we come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के पाक खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब हम आते हैं। Have mercy upon us, O Lord, and help us to understand your word while we are meditating on it. और खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम पर मेहरबानी करें, और जैसे ही हम आपके पाक कलाम का मुताला करने वाले हैं, हम पर आप अपना फजल बरसाएं। And help us to learn and worship you in truth and in spirit. और आपसे सीख कर रूह और सच्चाई से आपकी इबादत करने की रहमत हम पर अता फरमाएं। Father, I also pray that Lord hide me under your arms, speak with all of us from your word. खुदावंद मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे भी आपके हाथों के पीछे छिपाएं और आपके कलाम को आप ही हमारे लिए दें। Committing ourselves unto your loving hands, Heavenly Father, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Here in this passage, our God is speaking to Jacob. यहाँ पे इन आयतों में हमारा खुदा जो है वो याकूब से बातें कर रहा है। And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel and dwell there. और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह। And he said, And make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. और उसने कहा, तू जा और तुझे उस वक्त उस खुदा के लिए एक मज़बा बना जो तुझे दिखाई दिया था जिस वक्त तू अपने भाई एसाव के पास से भाग रहा था। This is the call that given to Jacob when he was in the time situation with the fear surrounding people. ये बुलावा है जो खुदा देता है उस वक्त जब याकूब के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे। We know that in chapter 31, Jacob came from his father-in-law with his wives and children.
हम जानते हैं कि पैदाइश की किताब 31वां बाब में वहां हम देखते हैं कि याकूब अपने ससुर लाबान से अलग होकर आ जाता है। And because God appeared unto him and he said, "Return back to your home." और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खुदा ने उसे दिखाई दिया और खुदा ने उससे कहा कि तू वापस अपने घर चला जा। He was there in Padanaram, and after so many years, he returned back to his home. वो पद्दनाराम में रहता था और बहुत सारे सालों के बाद अपने घर वो वापस चला जा रहा था। While he was on the way back to his home or his father's house, in the middle of the time, he stayed at some place. और जैसे ही वो वापस जा रहा था अपने वालिद साहब के घर तक पहुंचने के लिए, तो बीच में कुछ जगहों में उसे रुकना पड़ा। And we know that place is called Sukkot. In chapter 33, we read it. और 23 में हम पढ़ते हैं कि एक जगह में उसने रुका और उस जगह का नाम था सुकोत। And that we read, and he was living there. और हम जानते हैं वहां पढ़कर कि वो वहां सुकूनत भी कर रहा था। And surrounding people, neighbor people are not good people, and there he faced some situation, trouble. और वहां के लोग जो उसके इर्द गिर्द रहते थे, वो लोग इतने अच्छे लोग नहीं थे, इसीलिए उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। He fell in so much trouble at that time. उन दिनों में वो बहुत तंगी से गुजरते गया था। Now Jacob is so much in distress. अब याकूब जो है घबरा गया है। And now God appeared unto him, chapter 35, and saying, और इस वास्ते अब खुदा खुद 35वें बाब में याकूब को दिखाई देकर ये कहता है कि "Arise, go up to Bethel and dwell there, and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother." और वो कहता है, उठ बैतेल को जा और वहीं रह और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाव के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। Bethel is the place where Jacob first met God, or first he encountered, he saw God there. बैतेल ऐसी जगह है जहां पे याकूब ने पहली बार अपनी जिंदगी में खुदा से मिला था। Meaning for Bethel is the house of God. बैतेल का मतलब होता है इब्रानी जुबान में खुदा का घर। We know that when he was young, he fled from his brother. हम जानते हैं कि जब वो खतरे में था तो अपने भाई से भागा जा रहा था। While he was going or fleeing away from his brother, one night he dwelt there in one place. और जैसा ही वो अपने भाई से भागा जा रहा था तो एक रात ऐसा हुआ कि उसने एक जगह में एक रात बिताई। First time he saw the vision of God in his life. और अपनी जिंदगी में पहली बार खुदा को लेकर खुदा को अपने रोए में उसने देखा था। In his life, first time he heard the voice of God. अपनी जिंदगी में पहली बार उसने खुदा की आवाज भी सुनी थी। And he was terrible, he was trembled, and he worshipped God there, and he made a vow unto God. वो हैरान हो गया था, लड़खड़ाने लगा और वहां पे खुदा के सामने वो गिरकर इबादत करने लगा। Maybe that experience might have brought him more deep fellowship with God. और जो एहसास वहां तजुर्बा वहां हुआ था उससे शायद वो खुदा को और नजदीकी से जाना। That revelation or that encounter with God, that fear of God dwell in his heart. इस तरीके से खुदा से मिलने के बाद खुदा को लेकर खौफ जो है, खुदा का खौफ उसके दिल में बसने लगा। From that day onwards, he was serving God 20 years with the fear of God. और उस दिन को लेकर आगे तकरीबन 20 सालों तक वो खुदा की खिदमत करते आया। When he accepted God from that day, now he been deceived by his father-in-law, but he looked unto God at every situation. उस दिन से वो खुदा के नजदीक जीते रहा, लेकिन ऐसा हुआ था कि उसके ससुर लाबान जो था उसे धोखा देते आया था।
Now, after 20 years, when he was returning back to home, once again he fell in trouble. और अब 20 सालों के बाद जब वापस वो घर आना चाहा और आ भी रहा था तो वो मुसीबत में पड़ गया। God is speaking with him that go to the place where you met me first time. और इसी वास्ते यहाँ खुदा उससे कहने लगा कि तू उठकर उस जगह जा जहाँ तू पहले मुझसे मिला था। God is telling to Jacob that I will go to the place where I met you first time. मतलब खुदा ऐसा उससे कह रहा है कि देख मैं उस जगह में फिर से तुझे मिलने वाला हूँ जहाँ पे मैंने पहली बार तुझसे मिला था। Even in our lives, first encounter with God is so precious. ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी खुदा जब पहली बार हमारी जिंदगी में दाखिल होता है तो वो तजुर्बा बहुत खास तजुर्बा होता है। Here, Jacob in the third verse is telling that the God who appeared unto me, who answered me in the day of my distress. और तीसरे आयत में इसीलिए याकूब कह रहा है और वो खुदा जिसने मेरी मुसीबत या तंगी के दिन मेरी दुआओं कबूल की। Even in our lives, when we are fleeing away, when we are running away from some distress or some troubles, when God appeared first time, that is so precious in our life. हमारी जिंदगियों में भी कुछ ऐसा ही जब हम हमारी तंगी से, मुसीबत से, तकलीफ से जब हम भागते भागते रहते हैं तो जब खुदा हमारे करीब आकर अपने आप को जाहिर करेगा तो वो बहुत बड़ा तजुर्बा बन जाएगा। That experience, the testimony we cannot forget in our lives. वो एहसास जो है, वो तजुर्बा जो है, वो वक्त जो है हमारी जिंदगी में हम भूल नहीं सकेंगे। Sometimes we may forget that experience. कभी कभार हम उस एहसास या तजुर्बे से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं या भूल भी सकते हैं। But God asking us to go back to that first experience. लेकिन खुदा हमसे कहता है कि तू उस पहले तजुर्बे को याद रख। In Revelation chapter 2, God is telling us that. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 में खुदा कहता है, Revelation chapter 2 verse number 4. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 4। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। The first experience when we met God, we will show that first love, such great love that towards God. जब हम खुदा से पहली बार मिलते हैं तो खुदा की निस्बत बहुत बड़ा प्यार और मोहब्बत हम दिखाते हैं। Even the days or years are going on, we may forget that first days. और जैसे ही दिन ढलते जाएंगे, साल बीतते जाएंगे, हम उस पहले एहसास को, तजुर्बे को धीरे धीरे भूल भी सकते हैं। Reasons, whatever the reasons may be, sometimes we may forget that first love. वजूहात जो भी हों, हम उस पहली मोहब्बत को हम भूल सकते हैं। As here, this church at Ephesus is so perfect in all ways except that first love. यहाँ पे मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2 में एफेसुस के एक्लीसिया के बारे में खुदावंद यीशु ये बातें कह रहे हैं और वो एफेसुस का एक्लीसिया जो है वो हर बात में कामिल है, लेकिन पहली मोहब्बत को वो छोड़ रहा है। This church is perfect even in patience also. और ये एक्लीसिया जो है ये तहम्मुल में भी कामिल है। Perfect in doctrine also. और कलाम में भी ये कामिल है। And it finds out the false prophets which come into the church. और झूठे रसूल जो एक्लीसिया में दाखिल होते हैं उनको आजमा कर ये एक्लीसिया उन्हें झूठा भी पाया है। Church is perfect in all ways but forgot one thing. और ये एक्लीसिया जो है हर चीज में, हर बात में कामिल दिखता है, लेकिन ये कमी है और वो कमी ये है कि वो अपनी पहली मोहब्बत को उसने छोड़ दिया। That is the first love. मतलब पहली सी मोहब्बत को छोड़ दी। Here to the Jacob, God is speaking to him that go back to the place where I met you first time. इसीलिए खुदा याकूब से कह रहा है कि तू उस जगह में जा जहां मैंने पहली बार तुझसे मिला था। And go there and build an altar unto God. और कहता है खुदा कि तू वहां जा और खुदा के वास्ते एक मज़बा बना ले। Who was there? What is that experience is?
In that first place, the experience is और वहां पे उस पहली मुलाकात जहां खुदा से याकूब की हुई थी, वहां पे क्या खासियत है। Jacob needs to remember everything. याकूब को ये एहसास जो है, तजुर्बा जो है, पहले से मोहब्बत जो है, इन सभी बातों को याद रखने की जरूरत आन पड़ी है। Now Jacob got ready to go back to that first place. अब याकूब अपने आप को तैयार कर रहा है कि वो उस मकाम को, उस जगह तक जाए। But to go there, he needs some corrections. लेकिन वहां तक जाने के लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा तो सुधार आने की जरूरत है। Once again, he needs to check himself. अपने आप को परख कर जांचने की जरूरत आई है। Once again, he need to check his family. और अपने घराने को, अपने सारे घर में रहने वाले लोगों को भी जांचने की जरूरत आई है। Everything that belongs to him, he needs to check once again. अपना जो कुछ है, जो कुछ अपना कहलाता है, अपने सब कुछ का जांच करने का वक्त उसे आया है। Because God asked Jacob to go there and build an altar there and dwell there. क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि तू वहां जा और वहां खुदा के लिए एक मज़बा बना और वहां बसने लगो। So what Jacob did is, in the second verse we read, और तब याकूब ने क्या किया था, हम आयत नंबर 2 में पढ़ेंगे। he came to his household and he said to his household, तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा, put away the strange gods that are among you and be clean and change your garments. बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। And third verse he says, let us arise and go up to Bethel. और तीसरी आयत में वो कहता है, आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। 5 things we can understand, 5 points here. यहाँ पे हम 5 नुक्ते समझ सकते हैं। Number 1 is that put away all the strange gods that were among them. पहला नुक्ता ये है कि वो कहता है कि वो जो बेगाना देवताएं हैं हमारे दरमियान, उन्हें दूर करो। Strange gods means anything that is not belonging to God. बेगाना देवताओं का मतलब ये होता है वो चीज, कोई भी चीज हो, वो चीज जो हमारे सच्चे खुदा से ताल्लुक नहीं रखती है। A strange god means anything that is put instead of God himself. मतलब बेगाना देवता का मतलब ये भी होता है कि जो भी चीज खुदा की जगह में आ जाती है, taking a priority than our God himself. हमारे खुदा से भी ज्यादा अहमियत जो चीज ले लेती है। Anything that we cannot obey to God's voice, because of these things, they are the strange gods in our lives. और बेगाना देवता करके इन चीजों के बारे में भी कह सकते हैं जिनको लेकर हम खुदा के सामने सरकशी करते हैं। Sometimes our characteristics itself becomes a strange gods in our lives. कभी कभार हमारी खुसूसियात जो हैं वो ही खुद खुदा की निस्बत खुदा के सामने बेगाना देवताएं जैसे बन जाते हैं। Because of some character in our life we cannot obey God, we will take this character as higher in our lives. क्योंकि हमारी जिंदगी में भी ऐसी खुसूसियात होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते और जो हमारी जिंदगी में एक बेगाना देवता बन सकता है। We need to put away all strange gods. That means we need to empty ourselves before God. तो खुदा कहता है कि हमें भी बेगाना देवताओं को हमारी जिंदगी से दूर करना है। We need to empty ourselves, and next is that we need to be clean in every area. तो इसका मतलब यह है कि हमको अपने आप को बिल्कुल खाली करनी है और दूसरी बात यह है कि हमको तहारत करना है। We should be clean. तहारत मतलब अपने आप को पाक कर लेना है। And we cannot claim that we are clean unless the blood of our Lord Jesus Christ cleanses. हम पाक कैसे होंगे जब तक खुदावंद हमारे रब, हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में हम अपने आप को धो नहीं लेते, तब तक तहारत होती नहीं है। हम अपने आप को पाक बोल नहीं सकते। Because if we try to clean ourselves, we make some more unclean ourselves.
क्योंकि अगर हम अपने आप को पाक करने की कोशिश में लगेंगे अपने तरीके से, तो हम अपने आप को और नापाक बनाते जाएंगे। It is only the blood of Jesus Christ that cleanses us from all unclean. इसीलिए याद रखें कि हमारे खुदावंद यीशुआ का खून ही है वो चीज जो हमें हर तरह की नाराजगी और नापाकी से पाक साफ कर सकती है। And the third thing is that we need to change our garments. और तीसरी बात यह है कि हमें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। What God has given us, we should wear them only. खुदा जो कपड़े हमें देता है उन्हीं कपड़ों को हमें पहनना पड़ेगा। And fourth thing is that we need to arise ourselves, need to take encouragement, strengthen ourselves, and we need to stand up to worship God. और चौथी बात यह है कि हमें कायम रहना चाहिए, उठना चाहिए और उठकर खुदा की इबादत करने के वास्ते उसके करीब जाना चाहिए। We may be very distressed place, or we may be discouraged, we cannot move ourselves, we may feel that we lost everything. हम लोग शायद अपनी जिंदगियों में इस तरह की हैबतनाक जगहों में हैं, हम मुसीबत में शायद गर्क हो चुके हैं। We may feel that will God answer my prayers, or we may feel that will God accept my worship like that. इसीलिए कभी कभार हम सोचने लगेंगे कि क्या खुदा मुझे कबूल करेगा, क्या खुदा मेरी इबादत को मकबूल ठहराएगा। And if we put away all strange gods and cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ and took the garments that our God has given to us, लेकिन जब हम हमारे खुदा के करीब आएंगे और हमारी जिंदगी से बेगाना देवताओं को हटाकर खुदावंद यीशुआ के खून में तहारत करके खुदा जो कपड़े हमें देता है उन कपड़ों को अगर हम पहन लेंगे, we can rise, we can stand, we can jump to worship our God. तो हम उठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं और खुद कर खुदा की इबादत में मशगूल हो सकते हैं। Now the fifth thing is that and go up to Bethel, we need to come to the house of और God. पांचवी बात यह है कि खुदा ने उससे कहा है कि तू बेतेल को जा, मतलब हमें भी खुदा के घर में दाखिल होना है। To worship our God, we always need to come to the house of God. हमारे खुदा की इबादत करने के वास्ते हमें सदा उसके घर में दाखिल होना है। God has given us Jehovah Shammah to worship Him. खुदा ने हमें यहोशम्मा दिया है ताकि हम यहाँ आकर उसकी इबादत कर पाएं। This is the house of God for us to worship Him. ये खुदा का घर है जो हमें दिया गया है ताकि हम यहाँ आकर उसकी इबादत कर पाए। Wherever we are, we need to put away all our strange gods and we need to be cleansed by the blood of God and take the new garments and rise up and come to the house of God, Jehovah Shammah, to worship Him. लेकिन हम जहां भी हैं हमें वहां से उठना है और बेगाना देवताओं को छोड़ना है, खुदावंद यीशुआ के खून में तहारत बनाकर खुदा के दिए गए लिबासों से मुलब्बिस होकर यहोवा शम्मा में दाखिल होकर खुदा की इबादत करनी है। Here, Jacob, obeying God's word to worship God, to build an altar in the house of God, he prepared his household. यहाँ पे याकूब ने क्या किया था, उसने खुदा के कौल की फरमान बरदारी दिखाई और अपने घराने को भी उसने तैयार किया था। And he himself prepared to worship God. और उसने अपने आप को भी तैयार किया ताकि वो भी खुदा की इबादत कर सके। And whom he wanted to worship is the God who appeared unto him. और किसकी इबादत करने के लिए वो मुस्तैद हो रहा है, उस खुदा की इबादत करने के लिए जो उसे दिखाई दिया था। Third verse, second point is telling us that. और तीसरी आयत में दूसरा हिस्सा हमें ये कहता है, I will make there an altar unto God who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। Who is this God who met Jacob first time? पहली बार याकूब से जो खुदा मिला था, वो खुदा जो ये है, ये कौन है? Now he is going back to worship him in that first place. Who is this God? तो यहाँ याकूब उस मकाम पर, उस जगह पर फिर से वापस जा रहा है जहाँ पहली बार खुदा ने उससे मिला था। He is the God who answers in the day of distress. वो खुदा
ऐसा खुदा है जिसने याकूब के तंगी के दिनों में उसकी दुआ कबूल की थी। That day when he was fleeing away from his brother Esau, he was so afraid that his brother may fall upon him and may kill him. उस दिन जब वो अपने भाई एसाऊ से डर कर भागा जा रहा था, खौफ से भरा हुआ था कि कहीं मेरे भाई मेरे पीछा करके मुझे जान से ना मार डाले। And that day he was leaving his loving parents under whom he took that trust and rest everything. Now he was leaving that parents them itself. और उन दिनों में उस दिन वो अपने प्यारे अजीज वालिदैन को भी छोड़कर भाग रहा था, जिनकी पनाह में वो पनाहगीर होकर अपनी जिंदगी तब तक बिताई थी। Jacob was very meek man, always with his mother, and he don't know all his hardness and everything. याकूब अपने माँ के पास रहता था और बहुत नरम दिल इंसान था। वो नहीं जानता था कि बाहर की जिंदगी दुनिया में कैसी होती है। Now because of his brother's anger, he is fleeing away from his parents. लेकिन अब उसके भाई के कहर के वास्ते उस वजह से अपने सब कुछ छोड़कर, घर छोड़कर उसे भाग जाना पड़ा। He is going to the new place whom he never knew. वो एक नई जगह में जा रहा है, जगह को जा रहा है जहां वो अब तक नहीं गया, जो जगह उसके लिए नई थी। He might be with the strong fear that going alone. उसमें शायद बहुत ज्यादा खौफ हुआ होगा कि मैं अकेले जा रहा हूं। But God appeared unto him, he strengthened him. लेकिन खुदा ने उसे दिखाई दिया और उसे मजबूत किया। And that's the reason he is remembering that God who answered me in the day of my distress. इसीलिए वो उस खुदा को याद कर रहा है और कह रहा है कि वो खुदा मेरा खुदा है जिसने तंगी के दिनों में मेरी दुआ कबूल की। Not only that day, even today, when I was in distress, he appeared unto me, he answered unto me. That's what he is telling. इतना ही नहीं बल्कि याकूब ये भी कह रहा है कि आज के दिन में भी मेरा खुदा मेरे साथ है और उसने मुझे छोड़ा नहीं। He was so afraid that people around him will kill him. वो इतना डर रहा था कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उसे मार डालेंगे जान से। We will read those words in chapter 34, verse number 30. और चैप्टर 34 और आयत नंबर 30 में हम इन बातों को पढ़ते हैं। In the last lines we read that I being few in number, they shall gather themselves together against me and slay me, and I shall be destroyed, and I and my house. क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबले को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। Once again, here Jacob filled with the fear of death. यहाँ और एक बार याकूब मौत के डर से घेरा गया था। The death is that the enemy will come and they will slay me. वो सोच रहा था कि मेरा दुश्मन जो है, मेरे मुखालिफ, मेरे गिर्द गिर्द जो हैं, ये सब लोग मुझ पर आप पड़ेंगे और मेरा कत्ल कर देंगे। I being a few number, I cannot resist them. मैं तो बहुत चंद आदमियों का झुंड हूँ और मैं उन सबों पर गालिब नहीं आ पाऊंगा। But God appeared unto him in his distress. लेकिन खुदा ने उसकी उस हालत में, तंगी में, मुसीबत में उसके साथ रहा। He said that go to the house of God and build an altar there. खुदा ने उससे कहा कि तू बैतैल को, मतलब खुदा के घर तक जा और वहां एक मज़बा बना। The God of Jacob, not only the God who answered in the day of distress, he also the God who is with him in the way where he was going. और याकूब का खुदा जो है उसके तंगी के दिनों में उसकी मदद फरमाने वाला खुदा ही नहीं, बल्कि जहां जहां वो गया था उन जगहों में, हर जगह में ये खुदा जो है उसके साथ रहा। Here in the last line, in the third verse, we read those words. और तीसरी आयत के आखिर में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं। And was with me in the way which I went. और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा।
Not only he was there in the day of distress, मुसीबत के दिन ही खुदा उसके साथ रहा है, इतना ही नहीं बल्कि good people of this world, or whom people may feel that they are the heroes, may stand with us sometimes when we are in the trouble. अगर हम इस दुनिया के बारे में देखेंगे तो इस दुनिया में जो अच्छे लोग कहलाते हैं या मजबूत लोग कहलाते हैं, वो लोग हमारे साथ हमारी मुसीबत के दिन चंद दिन के लिए दे सकते हैं। We know, being the children of God, that God himself sent this help for us. और खुदा के बच्चे होने के नाते हम जानते हैं कि खुदा ने अपनी मदद हमारे वास्ते भेजी है। But the good people may help, or may help in the days or in the time of distress. और अच्छे लोग इस दुनिया के जो होते हैं वो लोग भी हमारी मदद मुसीबत में चंद दिन के लिए कर सकते हैं। Even that good people cannot be with us even all the days of our life. लेकिन हमारे तमाम जिंदगी के तमाम दिन वो अच्छे लोग नेकी करते करते हमारे साथ नहीं रहेंगे। But our God is such a good God. He was with us in the day of distress, and He is with us, going with us wherever we are going. लेकिन हमारे खुदा जो है वो हमारे साथ रहने वाला है और वो तंगी के दिनों में हमारे साथ रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि हम हमारी जिंदगी के सफर में जहां जहां जाएंगे वहां हमारे खुदा हमारे साथ आएगा। This is the promise our Lord Jesus Christ given to us. ये है हमारे खुदावंद यीशुआ का वादा जो उसने खुद हमसे किया था। When He rose again from the dead, जब हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठा, when He gave a great command to His disciples, जब उन्होंने अपने शागिर्दों को ग्रेट कमीशन का हुक्म दिया था, and He said unto His disciples, I am with you always, even unto the end of the world. तब खुदावंद यीशुआ ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। This is a great promise that God, our Lord Jesus Christ, given to us. ये है बहुत बड़ा वायदा जो हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें दिया था। Even unto the end of the world. खुदावंद कहते हैं दुनिया के आखिर तक Always with us, our God. हमारे खुदावंद हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। Because our Lord Jesus Christ is Emmanuel. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं वो इम्मानुएल हैं। God with us. इम्मानुएल का मतलब होता है खुदा हमारे साथ। Our Father, our God dwelt in the Lord Jesus Christ, and being in the Lord Jesus Christ, He is with us forever. हमारे खुदा आसमानी बाप जो हैं हमारे खुदावंद यीशुआ में हैं और यीशुआ में सुकूनत करते हमारे साथ बातें भी की थी। Why He is with us wherever we went? हम जहां भी जाएंगे हमारा खुदा हमारे साथ ही क्यों आते हैं? Wherever we go, why He is following us? जहां जहां हम जाएंगे वो हमारे पीछे क्यों करता है? To lead us, to guide us in the right way. ताकि हमें सही राह में चलाए और हमारे रहनुमाई रहबरी कर सके। To provide for us that we need in our life. हमारी जिंदगियों में हमारी हाजतें जो होती हैं उन्हें मुहैया करने के लिए। To protect us from all the dangers. हर मुसीबत से हमें बाज रखने के लिए। To give us what He promised in our lives. जो उसने हमारी जिंदगियों में मुहैया करने के लिए वादा किया है उन सभी बातों को चीजों को मुहैया करने के वास्ते। This is what we see in the life of Israel. हम इस्राएल की जिंदगी में इन्हीं बातों को देखते हैं। In the wilderness journey of Israel, इस्राएल के लोग जब बेयाबान के सफर में जा रहे थे, in the day of their trouble, God was with them. और उनके मुसीबत के दिन खुदा उनके साथ रहा। And He heard their voices and their cries. और उनकी आवाजें और उनके आहो नाला खुदा ने सुना। He came down and sent Moses to redeem them. इसीलिए वो आसमान से उतरकर मोशे को दिखाई देकर मोशे को भेजा। And He delivered the Israelites from that trouble, and He brought them out of the Egypt. और उसने इस्राएलियों को
मुसीबत से छुड़ाकर मिस्र से बाहर निकाल कर लाया। And when he was leading children of Israel in the wilderness, God was with them as the pillar of cloud and pillar of fire. और जैसे ही मोशे बियाबान में इस्राएल के लोगों को आगे बढ़ाते ले जाते रहा, खुदा उन लोगों के साथ आग का सुतून और बादल का सुतून बनकर अपनी मौजूदगी उनके साथ बरकरार रखा। He was with them, guiding them, and he was leading them, providing them, protecting them in all areas. हमेशा उनके साथ रहा और हर चीज मुहैया करते रहा, हर जरूरत रफा करते रहा। We know when God was with them, how greatly they were blessed. हम जानते हैं कि जब खुदा उनके साथ रहता था तो वो कितनी ही बड़ी बरकतें हासिल करते गए। When God was with them, they ate heavenly bread. जब खुदा उनके साथ था तो वो लोग आसमानी खुराक खाने लगे। So when our God is with us, we have our Lord Jesus Christ as heavenly bread. इसी तरह जब हमारे खुदा हमारे साथ रहेगा तो हमारे खुदा यीशुआ ही हमारे लिए आसमानी खुराक बनकर रहेगा। Even though children of Israel disobeyed God, God did not leave them. Finally, He brought them into the land which He promised unto the forefathers. इस्राएली लोग खुदा को छोड़ दिए, लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि उस मुल्क तक उनको ले आकर उस मुल्क में दाखिल कराया जिस मुल्क के बारे में खुदा ने उनके बाप दादों को वादा भी किया था। That great blessed God who was with Jacob and who was with Israelites also with us through our Lord Jesus Christ. वही खुदा, वो ही अजीम खुदा जो याकूब के साथ रहा, जो इस्राएलियों के साथ बियाबान में रहा, हमारे साथ आज खुदा यीशुआ में शामिल है। By remembering all these things about our God who was with us and who is with us, let us worship our God in His house. हमारे खुदा को याद करते हुए कि वो कौन है, क्या है, हमारे वास्ते क्या क्या किए हैं, इन बातों को याद करते हुए उसके हैकल में, उसके घर में हम उसकी तमजीद गाएंगे। Let us build an altar of worship unto Him. उसके सामने आकर हम इबादत का मज़बा हम भी बनाएंगे। May God bless these few words. इन बातों पर खुदा अपनी बरकत दे।